آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی ریحام خان کے ساتھ۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔ عورت اگر ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت، اگر بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت، اور اگر بہن ہو تو عزت، اور اگر بیوی ہو تو محبت۔ لیکن یہاں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ 2015 ورلڈ بینک کے سروے کے مطابق خواتین جو ہمارے سماج کا تقریباً نصف ہیں، اس کے باوجود ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ بدقسمتی سے ملکی سطح پر خواتین کی تعمیر و ترقی کے لیے جتنے بھی اعلانات کیے گئے ان میں سے نصف پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں ہوا کی بیٹی کی سماجی حیثیت دوسرے درجے کے شہری کی ہے، اور اگر پاکستان کے پسماندہ علاقوں کی بات کی جائے تو ایک تلخ اور شرمناک حقیقت یہ ہے کہ عورت کو دوسرا درجہ تو دور کی بات 7ویں 8ویں درجے کا شہری بھی شاید نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں کبھی سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں کاروکاری کے نام پر اقرا بی بی کا قتل کیا جاتا ہے، تو کبھی 12 سالہ ایک بچی کا چنیوٹ میں 5 ایکڑ زمین کے عوض ونی 85 سالہ شخص کے حوالے کیا جاتا ہے، اور کبھی سورہ کے نام پر معاشرے کے اس مظلوم طبقے کا استحصال روزمرہ کا معمول ہے۔ آج بھی کہیں چولہا پھٹ جاتا ہے تو کہیں تیزاب پھینک کر راہیلہ جیسی لڑکیوں کا چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے، کہیں 5 سالہ سنبل اور اس جیسی کئی معصوم لڑکیوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹتی جاتی ہیں، اور کہیں شکیلہ اور اس جیسی دیگر لڑکیوں کو پسند کی شادی کرنے پر جسم کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اور ان تمام حالات میں اگر کوئی شاہزیب خان جیسا بھائی اپنی بہن کی عزت بچا لے تو دولت اور طاقت کے بدمست ہاتھی پر سوار اس معاشرے کے شارخ جتوئی ان کو بھی نگل جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ہوس کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں، یہاں پر ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے، یہاں پر جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں، یہاں پر پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے، یہاں پر جسم ہیں بکتے، شباب بکتے ہیں۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود ہماری خواتین نے کئی بار یہ ثابت کیا ہے کہ زندگی کی گاڑی کو روا رکھنے کے لیے وہ مرد سے کسی صورت کم نہیں ہے۔ انہوں نے ہر میدان میں جوہر دکھائے ہیں، سیاست کا میدان ہو تو محترمہ فاطمہ جناح، سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہو تو رافع کریم، کھیل کا میدان ہو تو ثنا میر جیسی عظیم عورتوں نے ہر محاذ پر اپنی ہمت کا لوہا منوایا ہے۔ حال ہی میں نرگس ماولوا اور شرمین عبید جیسی قوم کی بیٹیوں نے اقوام عالم میں سبز ہلالی پرچم کو سر بلند کیا ہے۔ یہاں یہ بات خوش آئند ہے کہ ایک عرصے تک نظر انداز کیے جانے کے بعد اب خواتین کو ترقی کے دھارے میں لانے کی سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین کی ترقی کے حوالے سے ہم اپنے کردار کو مخصوص بلند و بانگ وعدوں اور دعووں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس سلسلے میں ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ آج ہماری ایک سٹار گیسٹ پینل بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کچھ باتوں کا تذکرہ کریں گے، کچھ ایسے واقعات آپ کو دکھائیں گے جو 2016 میں پاکستان کے روشن مستقبل کی گواہی دیتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، اور اس کے بعد ہم آپ کو تعارف کروائیں گے اپنے گیسٹ پینل سے۔ اور یہ ماشاءاللہ ہماری بچیاں ہیں، یہ آل ویمنز بینڈ ہے جو کہ ذوالفقار ان کے پروڈیوسر ہیں، اور آپ نے لیرک سنا، Now I'm rising from the ground, rising up to you, filled with all the strength I found, there's nothing I can't do, and there's nothing our Pakistani women can't do. Samina Beg, Touching the Skies ہماری
माउंटेनियर हैं, प्राइड पाकिस्तान हैं हमारे साथ। बड़ी खुशी की बात यह है कि एक्चुअली आप स्टीरियोटिपिकली ख़तरनाक किस्म की और बहुत जब आपको देखा जाता है बड़ी नाजुक सी और बड़ी सुशील सी शाइस्ता सी खातून, और लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि मैम ये वाकई इन्होंने किया है या ये कोई यहाँ पे कोई धांधली हुई है, क्योंकि वो तो इतनी नाजुक सी लगती हैं। साथ ही में आमना मलिक हैं, PMLN की रहनुमा भी हैं, बल्कि विमेन्स विंग पंजाब की वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा चेयर हैं FPCCI की, और 15 साल से बिजनेस के शोबे से मुंसलिक हैं, बहुत ही नॉन स्टीरियोटिपिकल बिजनेस के साथ मुंसलिक है, आर्किटेक्चर, माइनिंग और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के साथ, और साथ ही में थिंक टैंक चला रही हैं जो कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस करता है। और हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में निगत दाद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और ख़ास तौर पे आई सपोज वुमेन राइट्स के ऊपर भी, पर्टिकुलरली साइबर बुलिंग के बारे में इनसे बात करेंगे। महर तारर जर्नलिस्ट हैं और सुपर मॉम और सुपर वुमन भी हैं, दोनों ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से। आई थैंक यू ऑल। समीना, जैसे मैंने कहा आप तो इतनी नाजुक सी हैं, आप हम तो जो मर्द हजरात हैं वो तो आपको देख के दंग रह जाते हैं कि यहाँ पे कोई धांधली हुई है। ये हो सकता है कि भाई ने कंधे पे आपको उठा के और पहुंचा दिया और फिर कहा कि यहाँ पे परचम, जो हमारा सब्ज परचम है, वो यहाँ पे आप सर बुलंद करें, ऐसा है? रिहाम, मुझे हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं लोग, और स्पेशली मेल हजरात जब भी मिलते हैं, कहते हैं कि आप वही लड़की हो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की, आप तो नहीं हो सकती क्योंकि आप छोटी सी है, पतली सी, आप नहीं कर सकती। तो मुझे नहीं लगता कि इंसान को फिजिकल कंडीशंस पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। और साथ ही साथ जब फैमिली की सपोर्ट हो, भाइयों की सपोर्ट हो, तो ऑब्वियसली ख़वातीन कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा उनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बहुत ज़्यादा हौसला है, और अगर उनको थोड़ा सा मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है और फैमिली की तरफ सपोर्ट मिलती है, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ कर सकती है। और मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ, मैं इनके भाई की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और एक तरह से उन्होंने कंधा दिया है क्योंकि वो आपके साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने आपको आपका हौसला बुलंद रखा है, आपको एतमाद दिया है। जाहिर है ये मर्द हजरात जो आपकी फैमिली का हिस्सा हो, भाई हो, शौहर हो, वालिद हो, बेटा हो, से बड़ा फर्क पड़ता है। आमना, कुछ 6 फुट 4 इंच का होना जरूरी है सब कुछ अचीव करने के लिए? हम तो सिर्फ नाजुक हैं, हमें तो घर पे रहना चाहिए, चादर चार दीवारी में हमें या फिर अगर हम इस किस्म के काम करें तो फिर सर्टनली हमें पिंक तो नहीं पहनना चाहिए, हमें तो फिर ना मेकअप करना चाहिए, ना हमको बनना संवरना चाहिए, फिर हम तो मर्दों के शाना बशान मर्दों की तरह लगना चाहिए, नहीं? थैंक यू वेरी मच रेहाम, और मैं सबको हैप्पी विमेंस डे कहूँगी। आई बिलीव के जैसे मेरी कोलीग ने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये डिटर्मिनेशन की बात होती है, और अगर फैमिली सपोर्ट हो और आपके इंस्पिरेशन हो तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट। तो आपकी क्या फैमिली सपोर्ट, क्या इंस्पिरेशन है? बेसिकली मुझे ये है कि मुझे अचीवमेंट्स का अकम्प्लिश करने का हमेशा से शौक था, और मैंने बिल्कुल एट द स्क्रैच से शुरू किया था। ऑल्दो मेरी फैमिली इज़ अ वेरी नॉन पॉलिटिकल एंड बिजनेस फैमिली, मगर मुझे शौक था कि मेरा एक अपना नाम हो। लेकिन तो फिर आपके लिए आसान हुआ ना, आपके पास तो पुश होगी। नहीं जी, मैंने बिल्कुल आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, और मैं पहली खातून हूँ अपनी फैमिली में जिसने बकायदा बिजनेस रन किया है। मेरी फैमिली में और कोई खातून जो है वो बिजनेस में नहीं है। तो वाले साहब का बिजनेस संभाला के? नहीं जी, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, और मैंने बिल्कुल एक छोटी सी फर्म डेवलप की थी जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होके ग्रुप ऑफ कंपनीज की शक्ल इख्तियार की है। और मेरी सक्सेस स्टोरी जो है इट इज विटनेस बाय मेनी, बिकॉज कई बार मैंने लॉसेस भी किए हैं, कई बार मैंने गेन भी किया है। अच्छा, इसी तरफ में आना चाहती कि एक सियासी फैमिलीज, अक्सर लोग समझते हैं कि सियासी फैमिली होगी या जरा जो बहैसियत तबका है उनकी ज़िंदगी, उनकी ख़वातीन की ज़िंदगी बहुत आसान है। ज़िंदगी तो उन लोगों की मुश्किल है जो देहाती हैं या जो पसमानदा एरिया से जिनका ताल्लुक है मुतवस्तित तबके से, या जो गुर्बत का शिकार है। तो जिसका हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उस औरत पे क्या पाबंदी हो सकती है?
मेरा अपना ये ख्याल है कि मैंने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की और जब मैंने बिजनेस भी स्टार्ट किया था तो मेरे जो कज़न्स थे, मेरे वालिद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मगर जो मेरे कज़न्स थे उन्होंने मुझे बहुत अपोज किया और उन्होंने बिल्कुल डिसलाइक किया। मगर जब मैंने बिजनेस में मैंने सक्सेस हासिल की तो उन्होंने उसको फिर उसके बाद जब मैंने एक लेवल पे सक्सेस हासिल की तो उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। यानी फाइनेंशियल जब इम्प्रूवमेंट आती है खातून की तो सब, मगर शुरू में मुझे बहुत डिस्करेज किया और जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें एक औरत की एक्सेप्टेबिलिटी किसी भी काम में बड़ी देर से मानी जाती है, और औरत लॉसेस कर रही हो, और अदरवाइज एक्नॉलेज भी बड़ी मुश्किल से किया जाता है कि एक औरत भी कुछ अकम्प्लिश कर सकती है। 15 साल की स्ट्रगल है। हाँ जी, और मैंने बड़ी मेहनत की है और मेरा ख्याल है मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची। अच्छा, आपने वालिद साहब का जिक्र किया, हम चाहेंगे कि जो आपके खानदान की खवातीन है सब चारों जो हमारे आज कंट्रीब्यूटर्स हैं उन सबसे पूछें। चलेंगे निगत दाद की तरफ। निगत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल की खवातीन जो पढ़ी लिखी हैं, जो साहिब हैसियत हैं, प्रिविलेज्ड हैं, आपको लगता है कि वो अपना किरदार सही तरह से अदा कर रही हैं उन खवातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए जो कि अब कुछ शोबाजात में कदम रख रही हैं, जो स्ट्रगलिंग स्टार्टर्स हैं? क्योंकि हम मर्दों को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन खवातीन को कितना सपोर्ट करती हैं? अच्छा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सी यंग खवातीन रोल मॉडल्स हैं अब मुख्तलिफ मैदान में। और अगर देखा जाए तो हमारी पुरानी जो फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, जो वुमेन एक्शन फोरम है, अगर आप वहाँ से देखें तो वहाँ से खवातीन की तहरीक की एक हिस्ट्री शुरू होती है और वो हमेशा ऑपरेशन के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं। और अभी भी आप देख लें, बहुत सी यंग खवातीन हैं जो अपने प्रोफेशन में जो है वो कदम जमा रही हैं और शाना बशाना काम कर रही हैं। और ना सिर्फ ये कि वो काम कर रही हैं, बल्कि वो एक रोल मॉडल हैं और वो आने वाली लड़कियों के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और साइबर लॉज और पॉलिसी पे यंग लड़कियां हैं जो इस वक्त डट के खड़ी हुई हैं कि एक ड्रकोनियन जो बिल है वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। इसमें फरीहा अजीज हैं, सना सलीम हैं और मेरे साथ काम करने वाली लड़कियां हैं जो कि इस वक्त हुकूमत को ये बावर कराने की कोशिश कर रही हैं कि ये सिर्फ हुकूमत या रियासत जो है वो कवानीन नहीं बना सकती, बल्कि जमहूरी रियासत का मकसद ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके और ख़वातीन को बीच में शामिल करके उनकी आवाज़ को शामिल किया जाए और इसको जमहूरी तरीके से जो है वो कवानीन को बनाया जाए। तो मेरा ख्याल में यंग जो लड़कियां हैं और ख़वातीन हैं वो नए रास्ते बना रही हैं आने वाली लड़कियों के लिए। और मेरे ख्याल में साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें और लड़कियों को आना चाहिए, क्योंकि ये समझा जाता है कि ये आदमी जो हैं वो ही इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और साइबर और इसमें वो कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान में यंग लड़कियों ने दी है वो मेरे ख्याल में बहुत जो प्रेसिडेंट सेट किया है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करती। मेहर, मैं बात ये आगे बढ़ाऊंगी, अगर फैसला साजी में खवातीन को इख्तियारात ज्यादा दिए जाएं, जैसे निगत कह रही हैं कि इससे पहले कि कोई मंशूर बनाया जाए, इससे पहले कि कोई बिल पास किया जाए, उसमें तमाम की स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और साइबर बिल का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल निगत ने दिया, क्योंकि साइबर बिल है तो होना तो ये चाहिए, क्योंकि खवातीन को बहुत ज्यादा बुलिंग का निशाना बनाया जाता है साइबर क्राइम की वजह से। लेकिन खवातीन ही को साइबर क्राइम पे अक्सर जो एक्टिविस्ट हैं इन पे एतराजात है, क्योंकि ये इसमें तमाम जो जिनकी वॉइस थी, जिनकी आवाज़ थी, उनसे मशवरा नहीं किया गया। लेकिन क्या ये मशवरा या ये फैसला साजी का जो अमल है उसमें इख्तियारात तब ज़्यादा नहीं होंगे अगर सियासी नुमाइंदगी खवातीन की ज़्यादा होगी, अगर सियासत में उनको यानी वोट डालने का, बैलेट्स का और साथ ही साथ उनकी लीडरशिप का मौका उनको मिलेगा? क्योंकि ये हमारे जो यूएन के SDGs हैं उसका भी एक बहुत अहम नुक्ता है जो कि हम कॉन्स्टेंटली मिस कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? Firstly, happy Women's Day to all the women in the world and to the men. I think असल चेंज तो उस दिन आएगा जिस दिन हमें इस तरह के दिन मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट उसके लिए अभी बहुत लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। सबसे आई बिलीव कि असल चेंज उसी दिन आएगा जिस दिन हम किसी औरत की तारीफ़ करेंगे और ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छा काम करती है, ये कहे बगैर कि ये औरत होने के बावजूद बहुत अच्छा काम करती है।
आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन कि अब मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया व्हेन आई टॉक अबाउट say for instance if I'm talking about you or a politician or an actor, I try to use the word person. मुझे औरत होने से कोई शर्म नहीं है, ना मैं समझती हूँ, I'm very happy to be a woman, but I do believe कि वो जो एक स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में जी, औरत होने के बावजूद ये तो बड़ा अच्छा काम करिए, that has to go. एंड आप बिल्कुल सही कह रही हो. ऑफ कोर्स जिस वक्त तक औरतों को आगे आने का मौका नहीं मिलेगा, खास तौर पे पॉलिटिक्स, अपने बाप या भाई की ऐसी सीट्स पे सामने आई जबकि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी बीए की डिग्री की वजह से, एंड आई थिंक दैट हैज़ टू चेंज. ये बिल्कुल सही आप कह रही हो रेहम के पॉलिटिक्स में आपकी तरफ चलेंगे. बहुत अच्छा नुक्ता मेहर ने उठाया, और मैं बार बार, क्योंकि आज मैं इवेंट्स वगैरह अटेंड कर रही थी और मुझे लगा कि जो लैंग्वेज लोग इस्तेमाल करते हैं, अक्सर ये होता है कि जेंडर एम्पावरमेंट सेशंस पे बुलाते हैं, एक तो खवातीन की तादाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है. और आज मैंने एक इवेंट अटेंड किया जहाँ पे मर्दों की बहुत अच्छी तादाद थी और एक दो जुमलों के अलावा बाकी काफ़ी पोलिटिकली करेक्ट बातें की जा रही थी. लेकिन खवातीन को एक तो जो उन्होंने कहा कि खातून होने के बावजूद समीना ने माउंटेनियर बन गई हैं, कामयाब हो गई हैं, खातून होने के बावजूद जनाब बीसीसीआई की चेयर हैं, और साथ ही में ये तासुर कि सिर्फ मर्द ही हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं. क्या ये गलत नहीं है? क्योंकि खवातीन की कामयाबी के पीछे खातून का हाथ नहीं होता. अक्सर आपको किस तरह सपोर्ट मिली है या सपोर्ट नहीं मिली खवातीन की? ये किसी हद तक सही है, क्योंकि मेरा जो स्पोर्ट्स है, मेरी जो उठना बैठना होता है ज़्यादातर मेल्स के साथ होती है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में कोई नहीं है. सो ऑब्वियसली मुझे जो सपोर्ट किया मेरे भाई ने किया है. हर जितने भी हमने एक्सपीडिशंस की हैं, जितने भी हमने प्रोग्राम्स किए, ऑब्वियसली मैंने और मेरे भाई ने किया है. और एक ये भी बात मुझे लगता है किसी हद तक कि ये बात गलत है कि मेल्स सपोर्ट नहीं करती. मेरे भाई एक मिसाल है कि शमशाल एक छोटा सा गांव है, वहां से निकल के हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, माउंट एवरेस्ट समिट करना, फिर उसके बाद 7वें बरे-ए-आज़मों में जाके हमने पाकिस्तान का परचम लहराया. एंड ऑब्वियसली ये मेरी फैमिली सपोर्ट थी जो कि मैं इस मकाम तक मुझे पहुंचाया. तो आई थिंक मुझे ऑब्वियसली मेल्स की ज़्यादा सपोर्ट मिली है. तो इसका मतलब ये हो कि लेकिन वो मर्द, क्योंकि जिन लोगों ने बात की और मैंने बात की आपके भाई से, तो वो बहुत ही एक तो वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं, यानी वो आवाज़ बुलंद करते हैं इस बारे में. फिर उनका जो शऊर है वो काफ़ी, जो जैसे मेहर कह रही हैं, खवातीन का वो शऊर नहीं है. यानी खवातीन भी जब खवातीन के हुकूक के बारे में बात करती हैं तो ऐसी कोई बात कर जाती हैं जो मुझे लगता है कि ये बाशऊर बात नहीं कर रही. तो ये जो शऊर का लेवल है, ये कहाँ से? ज़ाहिर है उनकी परवरिश जहाँ हुई उस खानदान से आया होगा. आपकी वालदा का इसमें हाथ है? बिल्कुल, ऑब्वियसली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि एक माँ होती है घर में जो कि अपने बच्चों को परवरिश देती हैं. एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो अपने बच्चे को बचपन में ये सिखाना कि आपने बड़े होकर आपने रिस्पेक्ट देना है लोगों को, खवातीन का आपने रिस्पेक्ट करना है, अपने माशरे में जो भी लोग रहते हैं उनको आपने रिस्पेक्ट देना है. ऑब्वियसली हमारी अम्मी हमें सिखाती थी बचपन में, ऑब्वियसली हमारे भाइयों को सिखाती थी कि आपने किस तरह से खवातीन को आपने रिस्पेक्ट देना है, अपनी बहनों को आपने किस तरह रिस्पेक्ट देना है. क्योंकि हमारे घर में ये नहीं है कि आप ये ना करें, आप ये करें, लिमिटेड नहीं है. बहुत ज्यादा डिफरेंस होती है कि बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लड़कियों को कम वो दिया जाता है. लेकिन हमारी फैमिली में ये नहीं, क्योंकि हमारी माँ जो है उसने हमें हमारी बैलेंस माँ ने फर्क नहीं किया. हम छोटा सा एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद इस बात का तस्करा करेंगे कि औरत अगर कामयाब हो भी जाती है, अगर अपनी जात की सलाहियत के ऊपर या अपनी फैमिली की सपोर्ट पे या अकेली होके भी अगर कामयाब हो जाती है, तो फिर वो नफरत का बायस क्यों होती है? क्या इसलिए क्योंकि बहुत कम खवातीन को ये मौके मिलते हैं, या इसलिए क्योंकि हम हसद का शिकार हैं? वो लोग जो खवातीन भी हैं और खवातीन एनजीओ से भी उनका ताल्लुक है, जब पाकिस्तान से कोई औरत अचीव करती है, मलाला हो या शर्मीन अबैद चुनॉय हो, इससे पहले कि हम उन्हें मुबारकबाद दें, हम उनको गाली देना पसंद करते हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगाना पसंद करते हैं और उनको शक की निगाह से क्यों देखते हैं? अगर एक खातून नोबेल प्राइज जीत लेती है, एक बच्ची नोबेल प्राइज जीत सकती है, और उसके बाद एक खातून 2 बार ऑस्कर्स पाकिस्तान ले आती है, तो हमें क्या खुशी नहीं होनी चाहिए? क्या हमें यहाँ पे थोड़ी सी अपनी हसद को या अपनी जो कमजरफी है उसका मुजाहरा
करने से गुरेज करना चाहिए. Let's look at that moment where Sharmeen Obaid-Chinoy picked up the Oscar once again. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं तब्दीली रेहाम खान के साथ, और तब्दीली आई है. 2016 का आगाज थी, बहुत खुश आइंद कुछ बातें हुई हैं. 2 ऑस्कर अवार्ड्स हमारी पाकिस्तानी शर्मीन उबैद चिनॉय, पाकिस्तान की बेटी, ने हासिल किए हैं. मलाला ने गुज़िश्ता साल नोबेल प्राइज़ हासिल किया. उसके अलावा हमारे पास नरगिस मावलवाला ने ग्रेविटेशनल वेव्स की दरियाफ्त में मदद की. तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ निस्वां बिल पास कर दिया गया. और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐलान हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में भी इस पे अमल दरामद किया जाएगा. बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को भी एतराफ़ करना पड़ा और तारीफ़ करनी पड़ी मौजूदा हुकूमत की कि ख़वातीन और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मुताल्लिक हमने कानून साजी में काफ़ी बेहतरीन पेशरफ्त की है. सरकारी नौकरियों में पंजाब हुकूमत ने 5 से 15% तक कोटा ख़वातीन के लिए मुख्तस किया है. यानी कि बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिसकी वजह से हमें फ़ख्र करना चाहिए कि पाकिस्तान सही समत में रवाना है. लेकिन आमिना, फिर भी बहुत ज़्यादा हम ही अपने लोगों की तनकीद करते हैं. हम ही लोगों को अपनों को अपनाना नहीं आता. ये क्या वजह है? इसमें मसला किस बात का है? मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें आज के दिन पॉजिटिव सोच के साथ और अप्रिशिएट करना चाहिए. हमें ट्रिब्यूट देनी चाहिए उन तमाम ख़वातीन को जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है. मैं दिली तौर पे मलाला को, शर्मीन उबैद चिनॉय को, जो तमाम ख़वातीन हैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ है. बेसिकली ये सोच की तब्दीली जो आपका प्रोग्राम है, तो उस तब्दीली की ज़रूरत है. फिर भी उनको बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब ने शर्मीन उबैद चिनॉय की मूवी की इनॉग्रेशन की थी PM हाउस में. गवर्नमेंट और एक पर्सनल गारंटी भी दी है कि ऑनर किलिंग्स के ऊपर जो इज्जत के या इस्मत के नाम पे जो कि किलिंग्स होती हैं, जो कत्ल होते हैं हमारी बहनों की, बच्चियों के, उसके खिलाफ उन्होंने अपना वादा दिया है कि बिल्कुल काम बिल्कुल होगा. और फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आज हुई हैं. तो मेरा ख्याल है ये टाइम के साथ साथ बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, और जो ख़वातीन के हकूक़ हैं उनकी रियलाइजेशन हो रही है. और मेरा ये ख्याल है कि अगर आप देखा जाए तो अब ख़वातीन के जो हैं हेल्थ इश्यूज़ पे, एजुकेशनल इश्यूज़ पे, ये वायलेंस अगेंस्ट विमेन के ऊपर जैसे ये बिल पास हुआ है, हेल्थ पॉलिसी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आई है, BISP का जो प्रोग्राम है उसके फंड्स को इंक्रीज़ किया गया है. तो मेरा ख्याल है इन सब सेक्टर्स में बड़ी बेहतर तरीके से तब्दीली आएगी. और जो सोच की बात है, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर हम तालीम के ऊपर जोर दें तो ये तब्दीली आएगी. इससे ये जो हसद और किसी को आगे बढ़ता ना देखने की है, इसमें चेंज आएगा. तो एक माइंडसेट की चेंज की जरूरत है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. हमें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ एब्सोल्युटली मुस्बत सोच रखनी चाहिए. और मुस्बत हमें सोचना चाहिए कि बहुत सी बातें पाकिस्तान की हक में बहुत अच्छी हो रही हैं और हैरत अंगेज रफ्तार से हो रही हैं. हमें यकीन नहीं आता, लेकिन हो रही हैं, अमल दरामद हो रहा है. निगत, आप क्या कहेंगे कि ये विमेन प्रोटेक्शन बिल को एक तो जो तमस्खर बना है और एक जो खौफ है, हमारे मर्द हजरात हिरासा है इस बिल से. अभी पास नहीं हुआ था तब से शोर शुरू हो गया था, लेकिन इसमें क्या वजह है? ये तालीम का शऊर की कमी है. बल्कि मैंने कुछ खवातीन की फेसबुक पे कमेंट्स देखे हैं और वो इतने डिसटेस्टफुल हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि उनको हम ज्यादा प्रमोट करें, कवरेज दें तो अच्छी बात है, उसको निगेट करना अच्छी बात है, या बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि काम एक हो गया है, अच्छी तरह से काम हो गया है. बल्कि विमेन प्रोटेक्शन बिल में एक्चुअली तो मुझे जाती तौर पे 1-2 एतराजात हैं कि इससे बेहतर होना चाहिए था. तो ये जो खौफ है, ये जो हमें अपनी ही बच्चियों से डर लगता है, अपनी ही घर के खवातीन से डर लगता है, ये कहाँ तक रीजनेबल है? मेरे नहीं ख्याल कि ये कहीं से भी रीज़नेबल है. और डोमेस्टिक वायलेंस के कवानीन पे बहुत अरसे से हमारे समाजी कारकुन जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, और वो बहुत सालों से इस कोशिश में थे कि डोमेस्टिक वायलेंस को एक्नॉलेज किया जाए स्टेट लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, और उसका कोई लीगल रिकोर्स और लीगल रिलीफ खवातीन को मिलना चाहिए.
جب قوانین بنائے جاتے ہیں قوانین میں کوئی نہ کوئی لیکن یہاں مسئلہ بھی نکت ویمن پروٹیکشن بل ابھی بھی ویمن پروٹیکشن بل ڈومیسٹک وائلنس کو ایز اے کرمنل ایکٹ نہیں ریکگنائز کرتا. یعنی جو گھریلو تشدد میں ملوث ہے یا جو کسی قسم کے تشدد میں ملوث ہے عورت کے اوپر اس کو مجرم نہیں قرار دیا گیا. ایکشن بتایا ہے لیکن مجرم نہیں قرار دیا گیا. ہاں اگر عورت رپورٹ کرے اور وہ ثابت ہو جائے کہ جھوٹا الزام ہے تو اس کو مجرم قرار دیا گیا ہے. ریحام یہ مسئلہ یہ ہے کہ قوانین بنا دیے جاتے ہیں لیکن قوانین میں بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آج وومن ایکشن فورم جو کہ ہماری ایکٹیوسٹ اتنے سالوں سے ان مسائل پہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کیا لاہور میں اور اس میں خوش آمدید کیا گیا اس قانون کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں مسئلے ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ ان کو بھی ہائی لائٹ کیا. اور اس میں ایک بات جو آپ نے کہا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کو کرمنل نہیں کیا گیا وہ اس کو بھی اٹھایا گیا ہے. تو مسئلے ہیں اس بل میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم قوانین تو بنائے جا رہے ہیں, قوانین پہ قوانین آئے جا رہے ہیں, لیکن موجودہ جو قوانین ہیں ان پہ کہاں تک عمل درآمد ہم لوگ کر رہے ہیں, کتنے میکنزمز کو ہم لوگوں نے انیبل کیا ہے, اور جو پاکستان پینل کوڈ میں کیا پہلے سے کوئی پروویژنز موجود نہیں تھی, کیوں اس پہ کیوں عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور کیوں تشدد کے واقعات پاکستانی معاشرے میں زیادہ ہو رہے ہیں. ریحام میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑی جو ایک بہت بڑا گیپ ہے وہ یہ ہے کہ قوانین بنا دیے جاتے ہیں اور بہت سیکریسی میں بنائے جاتے ہیں. آنیسٹلی اس حکومت میں جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں ان کو اتنے سیکریٹ سے اتنے رازدارانہ طریقے سے بنایا جاتا ہے اور پھر اچانک جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز پہ کھول دیا جاتا ہے کہ جی یہ ڈرافٹ ہے اور اس کو ہم آگے لے کر کے جا رہے ہیں. یہ سائبر کرائم بل کے ساتھ ہوا, یہ وومن پروٹیکشن بل کے ساتھ ہوا. تو خواتین یا جو باقی اسٹیک ہولڈرز ان کے جو اعتراضات ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ریاست کو اور حکومت کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ لوگوں کو شامل کر لیں. یہ نہیں بنتا مہر آپ کو انکلوڈ کریں گے بحث میں, کیا یہ اس کا جواز نہیں بنتا کہ پاکستان میں اب ایک اچھی بات آئی ہے کہ ایک ویمن پروٹیکشن بل کا آغاز ہوا ہے, اس کے اوپر ایک بحث چھڑ اٹھی ہے. حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہے تو حقوق شوہران کی بات تمسخر کی طرف لے چلتے ہیں. تو اگر اس کو پہلے ہائی لائٹ کیا جاتا تو کیا یہ ارلی چائلڈ میرج بل جو کہ 2 دن بھی نہیں چل سکا, ابھی ایک MNA نے آگے اس کو پروپوز کیا, اٹ واز شاٹ ڈاؤن. تو یعنی کہ پاکستان میں ضرورت ہے سیکریسی کی, کیونکہ اگر سیکریٹ نہ ہوتا تو شاید یہ پاس ہی نہ ہوتا, گورنر صاحب پنجاب کے سائن ہی نہ کر پاتے, آگے بھی یہ بڑھتا نہ دکھائی دیتا. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کے کوئی اس میں کوئی مصلحت ہے چھپانے میں؟ اس سے ریحام آئی بلیو کہ مائنڈ سیٹ جو میرا فیوریٹ ورڈ ہے ساری بحث کے بارے میں, کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. اگر سب سے پہلے گورنمنٹ کو اپنے ناٹ اپنے بٹ اخبارات کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اٹس ناٹ اس ورسز اگینسٹ مین, یہ مردوں اور عورتوں کی لڑائی نہیں ہے, یہ اسلام اور لبرلز کی کوئی ٹسل شروع کرنے کی کہانی نہیں ہے. یہ صرف ان ایکسیپشن ان کیسز میں ہے جہاں پہ ایک اکیلی عورت پہ اتنا ظلم ہو, فزیکل ظلم ہو رہا ہو کہ اس کو یہ اور اس کے ارد گرد کوئی نہ ہو تو اس کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہ کسی کو بلا سکتی ہے اور کوئی اس کے اگینسٹ ایکشن لے گا. باقی جہاں تک سٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے کی بات ہے تو آئی تھنک اب ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ اس چیز کا خوف ہے کہ کانورسیشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ڈائلاگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لوگوں کو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے کی عادت ہی نہیں ہے. جب عادت ہی نہیں ہے, جب بات سننی ہی نہیں ہے, وہ میں لبرلز کے بارے میں بھی کہتی ہوں, کنزرویٹیوز کے بارے میں بھی کہتی ہوں, ریلیجس لوگوں کے بارے میں بھی کہتی ہوں, نان ریلیجس لوگوں کے بارے میں بھی کہتی ہوں, سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح ہوں. اور جب تک یہ میں لوگوں کے اندر سے نہیں نکلے گی, وہ گورنمنٹ ہو, وہ لا میکرز ہوں, وہ پارلیمنٹیرینز ہوں, وہ گھر میں ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں, شوہر بیوی ہوں, بہن بھائی کوئی بھی ہو, ان میں جب تک ایک دوسرے کی بات سننے کا وہ نہیں ہے, وہ پیشنس نہیں ہے اور حوصلہ نہیں ہے, کچھ بھی بدلے گا نہیں. قوانین ہر چیز کے ہمیشہ سے ہیں, اس وقت بھی ہیں. میں نے اپنے ارد گرد ایک ٹین ایج بچی کچھ عرصہ پہلے غائب ہو گئی تھی, کسی کے گھر میں وہ کام کرتی تھی, اور اس کا جس طرح میں نے پولیس کو اس کو نکالنے کی, ان کے پاس کوئی کلو نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے. جس طرح میں نے پولیس کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک غریب بچی کے لیے, لیکن کانسیپٹ یہ کہ پولیس کچھ بھی نہیں کرتی. اور آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں,
लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त इफेक्टिव होगी जब हमारे माइंडसेट्स चेंज हो जाएंगे, और उसके लिए हमें बहुत लंबा काम करना होगा जो हमारे घर से शुरू होता है। माइंडसेट कैसे चेंज किया जाएगा? मेहर बहुत अच्छी बात करी है। समीना और आमना, आप दोनों से मैं पूछूंगी कि ये इंतहा पसंद रवैया जो है, ये इंतहा पसंद रवैया हमारे माशरे में हर तरफ ये परमिएट कर गया है, यानी हम वाकई बात करने की जहमत ही नहीं करते। आज भी मैंने देखा कि इवेंट पे लोग अपनी बात करके, और एक बच्ची ने बड़ा अच्छी बात कही कि आप तो आपसे तकरीर करने के लिए आए थे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुने, हम इतनी दूर से उठ के आए हैं। एक राइट और एक लेफ्ट, एक एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स हैं, और आपस में बात करने का तहम्मुल नहीं है। आई थिंक जैसे पहले मेहर कह रही थी आमिना भी कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एजुकेशन की है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अनएजुकेटेड हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो मुझे लगता है जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए वो एजुकेशन पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा माशरा एजुकेटेड नहीं होगा तब तक वो सही और गलत का जो डिफरेंस है वो नहीं कर पाएगा। फाइनल वर्ड जी, हुकूमत क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती? बिल्स तो धड़ाधड़ पास कर रही है। बिल्कुल इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी करेगी। एक चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, पॉपुलेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बेसिकली हमारी जो एनर्जीज हैं, इट नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड इन द पॉजिटिव मैनर। हम लोग सैडिस्ट अप्रोच रखते हैं, हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हैं। सो मेरा ख्याल है जो हमारी यूथ है उनकी एनर्जीज अगर पॉजिटिव साइड पे यूज होंगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनके पास रिसोर्सेज होंगे, जैसे अभी यूथ लोन स्कीम है, ऐसी चीजें, तो ये पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो ये जो क्रिटिसिज्म हर चीज पे ऐसी बातें होती हैं ये खत्म होंगी। मेरा ख्याल है कि ख्वातीन का आगे मुस्तकबिल जो है इन बिल से, इन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम से काफी बेहतर होगा, तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त 80% खवातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, और पाकिस्तान में आबादी की कुल शरह खानदगी 46% है, जिसमें से खवातीन की शरह खानदगी इस वक्त सिर्फ 26% है। पाकिस्तान में खवातीन के हुकूक की जब बात की जाती है तो इस हवाले से अगर कानून साजी हो और खुशाइंद बात है ये कि हो रही है, तो उसमें एक मजहबी बहस छिड़ जाती है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि कौन सा मजहब है जो कि इंसानी हुकूक के खिलाफ होगा, या कौन सा मजहब है जो इंसान पे तशद्दुद करने की बात करेगा। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब नहीं है, और मेरे जहन में और कोई मजहब नहीं आ रहा जहां किसी के साथ ज्यादती, किसी के साथ तशद्दुद, किसी के साथ जुल्म करने की बात की गई हो। जरूरत इस बात की है कि जरा खुले दिमाग से तहम्मुल के साथ एक दूसरे की बात भी सुने, एक दूसरे की कामयाबी को सराहने के लिए दिल बड़ा करें, और अगर कोई कामयाब हो तो उसको शक की निगाह से ना देखें। क्या मालूम कि वो आपसे कुछ ज्यादा मेहनत, जिद्दोजहद और मुसलसल बहुत ज्यादा खून पसीना लगा के उस मकाम तक पहुंचा हो। उसको अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो खुदारा उसको तनकीद का निशाना ना बनाएं। ये बहनों के लिए और बच्चियों के लिए सिर्फ नहीं है, ये हमारे मर्द हजरात के लिए भी है। बात जहां भी मोहब्बत से, एहतराम से, तहम्मुल से की जाएगी, वहां हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, घर भी आबाद रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भी आबाद रहेगा। जहां रहें आबाद रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज।